अस्सलाम वालेकुम सर, आपको छुट्टियां नहीं हुई सर? और सर क्या बात है, क्या बात है सर, चोरी कैड हाँ जी। शायद यार अभी छुट्टियां कहाँ हो गई हैं। वक़्त तुम कुछ कह रहे थे? सर मैंने कहा हेडफोन बड़े कमाल के हैं सर, किसके उठाएं? अरे कौकब, तुम फनी होने की कोशिश नहीं किया करो। ये तुम्हें पता है ना, तुमसे हुआ नहीं जाता। सर असल में मसला ये है, ऑनलाइन क्लास में ना बॉडी बोरिंग बड़ी हो जाती है, हल्का हल्का फन चलता रहना चाहिए सर। Yes, actually, I miss the students in front of me actually better. और पिछले सर हम रिसर्च वाले पहुंच जाएंगे सर कल। एक्सक्यूज मी सर। सर एक्सक्यूज मी सर, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ आ रही है, बोले। सर आपने क्यों मास्क लगाया है? अब तो है भी कोई नहीं। मैंने कुर्सियों से बचने के लिए लगाया, हो सकता है इनका भी कोरोना हो। मुझे सर अब तो बच्चे मुझे हैं भी। मुझे आदत हो गई है अब ना मास्क के साथ पढ़ाने की। उतार लेता हूँ अभी थोड़ी देर में। चलें जी, बात करते हैं कुछ पढ़ने की। मुझे ये बताइए कि कोई मसला मसाइल पिछले सेशन में से तो नहीं है? No, sir. चलें सही है। प्रीवियसली वी स्टार्टेड द प्लांट टिश्यू कल्चर मीडियम के बारे में बात कर रहे थे, और इसमें हम डिफरेंट एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, इंक्लूडिंग द मैक्रो एलिमेंट्स एंड द माइक्रो एलिमेंट्स। और उसमें हमने कुछ माइक्रो एलिमेंट्स पढ़े, और उसके बाद फिर हम मैक्रो पढ़े, फिर माइक्रो एलिमेंट्स पे शिफ्ट हुए। और यहाँ पे हम पढ़ रहे थे एकदम माइक्रो एलिमेंट्स के बाद एक क्वेश्चन आया था हमारे पास, उस पर डिस्कशन हुई थी। So why in the first development many tissues were undoubtedly grown successfully in tissue culture media without micronutrients। और फिर इस पे बात हुई थी। इसके बाद हमने थोड़ा सा कंपैरिजन किया था हाउ different in the different media different concentrations of the micronutrients they are required। और इसके साथ साथ हमने फिर जो आज स्टार्ट करना है, we have to start from the boron
and boron that is actually involved in the plasma membrane integrity, and that is actually influencing the membrane proteins and cell wall intactness को ये बोरॉन जो है that maintain करता है, जिसकी वजह से हमें ये सेल के अंदर चाहिए है. It is also required for the metabolism of phenolic acids and for the lignin biosynthesis, and it is probably a component or as a cofactor for different enzymes. तो बोरॉन के अगर हम functions को enlist करें तो इसमें एक तो यह है सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल की इंटेग्रिटी. उसके साथ साथ this is involved in the metabolism of phenolic acids and for the lignin biosynthesis, और this may be act as a cofactor for the enzymes which convert chromic acid to hydroxyferrulate. ठीक है, तो बोरॉन के different roles पे हम बात कर रहे हैं. Why it is necessary to add the boron in the plant tissue culture media? It is necessary for the maintenance of meristematic activity, and most likely because it is involved in the synthesis of nitrogenous bases, and again it is also thought to be involved in the maintenance of membrane structure and function, possibly by stabilizing the natural metal chelates. तो हम chelating agents पे या chelating ions पे हमने बात की थी, which are important in wall and membrane structure and function. And these are some salient features of the boron, so that's why we think that boron is required in the media, but in lower concentration, and so that's why that is considered as a micronutrient. उसके बाद अगर हम मज़ीद इसको extend करें तो मैंगनीज, और मैंगनीज जो है ये that is the most important micronutrient, और इसकी जो properties हैं they are similar to magnesium, और apparently it is apparently able to replace the magnesium in some enzyme systems में हम मैंगनीज को replace कर सकते हैं, magnesium को replace कर सकते हैं मैंगनीज से. इसके अलावा ये मैंगनीज जो है that is involved in the respiration, photosynthesis as well as metalloprotein structures में involved है, and it is also known to be required for the activity of several enzymes, और क्लोरोप्लास्ट का अल्ट्रा स्ट्रक्चर मेंटेन करने में मैंगनीज इन्वॉल्व है. इसके अलावा द रेगुलेशन ऑफ एंजाइम्स एंड अदर ग्रोथ हार्मोन्स के रेगुलेशन में मैंगनीज का रोल है, और it has its role in the photosynthesis and respiration processes. तो मैंगनीज is an important micronutrient. उसके बाद अगर बात करें जिंक की, जिंक is a stable metalloenzyme component and with many diverse functions, और approximately 300 के करीब एंजाइम ऐसे हैं which require zinc for their normal functioning. So its deficient plant, they will suffer from the reduced enzyme activities, and as a consequent they will deminute in protein, nucleic acids and chlorophyll synthesis. So अगर zinc deficient हैं तो these enzymes they will be deficient in the protein synthesis, in the nucleic acid synthesis and the chlorophyll synthesis. So there is a close relationship between zinc concentration of plants and their oxygen content, और plant में growth hormones के point of view से oxygen के साथ zinc का important role study है. Copper है, plant only contain a few parts of million of copper. ये अक्सर हमने देखा है बुक्स के अंदर parts per million unit लिखा हुआ, parts per million. तो if a thing is very minute, तो हम उसको यूं लिखते हैं इस तरह से. For example, we can say 1 part per million, ppm. If the component is if the whole media we consider that is 1 million, तो उसमें कॉपर का पार्ट जो है वो 1 होगा, ठीक है, 1 per million. It become attached to enzymes, many of which bind to and reach with oxygen. It occurs in plastocyanin. That is a pigment which participates in electron transport chain. Plastocyanin. और लेकिन मसला यह है कि चूंकि कॉपर जो है बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है, इसलिए अगर कॉपर की हमारे पास कंसंट्रेशन थोड़ी इंक्रीज कर जाएगी, दैट कुड बी टॉक्सिक हो सकती है. मोल्बेटिनम है, इट इज यूटिलाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ hexavalent form में यूटिलाइज किया जाता है by plants, and it is absorbed as the molybdenate ions.
molybdenate ions की फॉर्म में प्लांट्स जो है इसको absorb करने की ability रखते हैं from the medium and from the soil as well. So it is a component of several plant enzymes, two being nitrate reductase and nitrogenase. So nitrate reductase और nitrogenase का important part है. इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में या नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में मोल्बेक्टिन जो है that may have its proper role. और आयरन के साथ ये एज अ विद आयरन दिस विल एक्ट एज अ कोफैक्टर फॉर डिफरेंट एंजाइम्स. उसके बाद बात करते हैं कोबाल्ट की. Cobalt is also micronutrients that will need to add into the medium, or it is sometimes not regarded as an essential element, but it might have its role in regulating the morphogenesis of higher plants. Morphogenesis में इसका role है, लेकिन sometimes हम इसको consider नहीं करते essential element के तौर पे. और it is the metal component of vitamin B12, which is concerned with nucleic acid synthesis. Though evidence that it has any marked stimulatory effect on growth and morphogenesis is hard to find. अगरचे हमारे पास कोई as such उसमें नहीं है इसके evidences that this cobalt that has its role with the morphogenesis of the plant and the growth of the plant, but still it is considered that जो vitamin B12 के component की हैसियत से that is concerned with the nucleic acid synthesis, इसी वजह से हम इसको essential element sometimes नहीं भी consider किया करते. It can have a protective action against the metal chelate toxicity, and it is able to inhibit the oxidative reaction which are catalyzed by the copper and iron. तो ये हमारे पास protective action play करता है against the chelate toxicity operations, and cobalt can inhibit the ethylene biosynthesis. Okay, here I have a question. What is the role of ethylene biosynthesis in plants with respect to growth regulation? Sir, ripening of fruits, sir. Ripening of fruits. Ethylene होती है या इथेन होती है? सर उसमें ना कंफ्यूजन थी, लाइक मैंने इसको सिर्फ एफएससी में डिस्कस किया था, लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम ये थी, वहाँ पे इथाइलिन और इथाइन इन दो डिफरेंट चीज़ों में फ़र्क आ रहा था, लेकिन उसमें यही था कि ये दोनों फ्रूट रिपनिंग में ही इन्वॉल्व होती हैं. If that cobalt has ability to inhibit the ethylene biosynthesis, तो इसका मतलब है कि cobalt जो है ये तो नेगेटिव होगा फ्रूट राइपनिंग के लिए. कोकब? यस सर, नेगेटिव होगा. हाँ, तो कोकब फिर आपका लॉजिक तो इसमें नहीं समझ आ रहा. Ethylene biosynthesis, how that is important for the plants? What do you think, all of you? This is growth के लिए important है. How? मतलब ethylene is positive for the is required for the growth or not? Required for the growth, for regulating the growth. नहीं सर, अगर कोबाल्ट इनहिबिट कर रहा है इथाइलिन को तो वो कोई हार्मफुल ही होगा ना उसका इफेक्ट, तभी तो इनहिबिट कर रहे हैं. अच्छा, we have another logic. इसके अलावा जी कोई? Anyone else? देखें, कोबाल्ट जरूरी नहीं है कि इथाइलिन बायोसिंथेसिस जो है इसका हमारे पास नेगेटिव रोल ही हो. It might possible, कॉकब की बात को अगर हम इस पे कंसिडर करें, if ethylene is involved in the fruit ripening, और हम क्या कर रहे हैं कि हम मीडिया के अंदर कोबाल्ट देके इथाइलिन बायोसिंथेसिस को स्टॉप कर रहे हैं. We have certain conditions in the plant tissue culture in which we discourage the fruit ripening, where we don't want to ripen the fruit. We want to extend the generation. उसमें फिर हम लोग अगर मीडिया के अंदर कोबाल्ट की कंसंट्रेशन इनहांस कर दें, थोड़ा उसको ऐड कर दें, तो दैट में इनहिबिट द फ्रूट राइपनिंग. तो इन दैट केस दिस इज नॉट नेगेटिव फॉर अस. इन दिस केस वी आर फुलफिलिंग आवर ऑब्जेक्टिव बाय द एडिशन ऑफ द कोबाल्ट. सो इथाइलिन बायोसिंथेसिस या इस पाथवे को इनहिबिट करते हुए कोबाल्ट, ये सिर्फ कोबाल्ट की कैरेक्टरिस्टिक लिखी हुई है. Doesn't matter this is negative for the plant or not. You know that situation to situation, some pathway, if normally they are inhibitory and negative to the plant, we can manipulate and we can exploit these pathways for our own purposes. Okay, तो अगला है निकल. निकल is a component of urease enzyme, और यूरिएज एंजाइम के बारे में हम काफ़ी दफ़ा पढ़ चुके हैं कि दैट इज़ an enzyme that has the ability to convert the urea into ammonia and carbon dioxide, and it has been shown to be an essential micronutrient for some legumes. So निकल जो है ये legumes plants के लिए
essential microelement है. And in the presence of nickel, nickel strongly stimulate the growth, cell growth, खास तौर पे वो मीडिया जिसके अंदर नाइट्रोजन सोर्स है वो एज ए यूरिया प्रेजेंट है. तो उसमें जो कि अगर निकल दे देंगे तो यूरियाज will actively affect and urease will break it down. Agar contains relatively high levels of nickel or and possibility of urea toxicity may have been avoided because in tissue culture media urea diffuses into the medium. ये इस सेंटेंस को जरा थोड़ा सा गौर से देखिएगा. नॉर्मली जब हम एगर ऐड करते हैं मीडिया के अंदर उसके अंदर निकल का हाई लेवल मौजूद होता है एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ यूरिया टॉक्सिसिटी may have been avoided because in tissue culture media urea diffuses into the medium. तो normally ऐसा हुआ करता है कि when the urea diffuses into the medium and there is the urease enzyme और निकल हमने दे दिया है agar की form में, the urease enzyme they would be activated. They would be converting this urea, the diffused urea into the medium into ammonia and carbon dioxide. So इस वजह से हमारे पास जो urea toxicity means that if we have provided the urea in higher concentration, so that would result in the urea toxicity. But if we have added the agar as a solidifying agent, that agar may contain the nickel and that nickel may activate the urease enzyme and that urease enzyme will convert the urea into ammonia and the carbon dioxide resultantly. Okay. So next one that we have the micro element that we have, this is the iodine, and it is not recognized as essential element as we discussed in the case of cobalt, I think. Element for plants, although it may be necessary for growth of some algae and a small amount was accumulated in higher plants. So algae वगैरह की growth के लिए iodine that is required, but in the case of plant that is not considered as that is not considered as essential element. अच्छा, इसके अलावा it has been added to many tissue culture media and still it improved the in vitro root growth, and it has been observed that this iodine has ability to improve the root growth or explant browning को prevent करता है. Explant, you know that, do you remember the explant? हमने बात की थी इसी कोर्स में, पुराने जमाने की बात है. Explant. Yes sir. Yes sir. बिल्कुल ठीक है. तो explant की whenever we add the explant into the media, there are chances for the browning of the explant, and browning that would refer towards the drying of that explant. तो जो iodine है that would prevent the explant browning and that would allow the explant to sprout there. It enhances the destruction or the lateral transport of the oxygen. तो ऑक्सीजन की डिस्ट्रक्शन को enhance करता है normally iodine की presence in the medium. Okay. So next one, that is iron. Iron is very much important, and key properties of iron, if we discuss, is the capacity to be oxidized easily from the ferrous to the ferric, and for ferric compound to be readily reduced back to the ferrous form. तो oxidation और reduction जो है इसकी iron की काफी हमारे पास easily है, और so that's why ये एक key property है. Iron is primarily used in the chloroplast, mitochondria, and peroxisome for affecting the oxidation and reduction reactions. Sorry. It is a component of ferredoxin proteins which function as electron carriers in the photosynthesis. अगर photosynthesis को आप recall करें तो ferredoxin protein का important part है iron. Iron is also, it is considered that it is an essential microelement for plant tissue culture and can be taken up as either ferrous or ferric ions. Because you know that if they are, we have added the ferrous ions that will be oxidized to, and if we have ferric and the plant need the ferrous, they would be reduced back. Iron may not be available to plant cells unless the pH falls sufficiently to bring free ions back to solutions. तो आयरन की एक्टिविटी के लिए pH जो है that matters, and pH, if pH has been increased as a result of metabolism, तो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि आयरन जो freely available iron है that would not be available for the plants to grow properly, and in that case we have to maintain and we have to drop down the pH again for the plants. Iron can be chelated with EDTA, and EDTA आप लोगों ने मुझे बताया था EDTA is a chelating agent. The addition of
iron with EDTA chelate greatly improve the availability of the element. और इसमें हम आगे कुछ chelating agents के बारे में पढ़ेंगे अभी. Chelating agents जो हैं, in some organic compounds they are capable of forming complexes with the metal cations, specifically with the cations, in which the metal is held with the fairly tight chemical bonds. और metal can be bound or the sequestered, जो भी हमने food biotechnology में word use किया था, sequestered by a chelating agent and held in solution under conditions where free ions would react with anions to form insoluble compounds. तो हम नॉर्मली ऐसा करते हैं कि जिन सॉल्यूशंस में हमें खतरा हो कि केटाइंस जो हैं दे आर प्रेजेंट एंड दे आर फ्रीली प्रेजेंट एंड दे विल रिएक्ट विद द एनायंस और ये कोई कंपाउंड बना लेंगे, तो वहां पे हम क्या करते हैं कि जो केटाइंस हैं उनको चिलेटिंग फॉर्म में ऐड करते हैं. वी वुड ऐड द आयरन और द अदर केटाइन इन द फॉर्म ऑफ सिक्वेस्टर्ड फॉर्म, यानी कि EDTA के साथ ऐड करेंगे ताकि केटाइन फ्रीली अवेलेबल ना हो टू फॉर्म अ बॉन्ड विद द एनायन. And some complexes can be more chemically reactive than the metal themselves. So chelating agents vary in their sequestering capacity according to chemical structure and the degree of ionization, which changes with pH of the solution. कौन सा chelating agent add करना है, it depends upon certain factors जो कि हमने यहाँ पे भी list किए हैं. So naturally occurring compounds they can act as a chelating agent, such as proteins, peptides, carboxylic acid, and amino acid. They may be the good chelating agent for the iron specifically. There are also synthetic chelating agents. They have high avidity for divalent and trivalent ions. अच्छा मुझे ये बताइए कि फेरस और फेरिक में से डाइवेलेंट कौन सा है और ट्राइवेलेंट कौन सा है? फेरिक सर ट्राइवेलेंट है और जो फेरस है वो डाइवेलेंट है. ओके ओके, तो कुछ चेलेटिंग एजेंट्स की लिस्ट है: EDTA, EGTA, EDD, HA, DTPA, DHPTA, and these are some chelating agents. They are synthetically introduced chelating agents that may be used for the ऐसा चिलेटिंग एजेंट्स में हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, बाकायदा एक हमारे पास ट्रांजिशन स्फीयर होता है इनका मेटल के अराउंड. तो सर अगर हम लोगों ने मेटल को चिलेटिंग एजेंट्स की फॉर्म में, मतलब चिलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्म में ऐड करें, तो हमें क्या कोई और कंपाउंड ऐड करना चाहिए पड़ेगा जो कि इन चिलेटिंग एजेंट्स को मतलब रिमूव करवा के उसकी अवेलेबिलिटी को टाइम टू टाइम इंक्रीज करता रहे? एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है दैट विल इंश्योर द एक्सट्रैक्शन ऑफ दैट आयन फ्रॉम दैट चिलेटिंग एजेंट. ठीक है, विद द बेस्ट ऑफ टाइम. ओके, इसके बाद कार्बन सोर्सेज पे हम आते हैं. मैक्रो एलिमेंट्स और माइक्रो एलिमेंट्स के बाद हम कार्बन सोर्सेज पे आते हैं. मोस्ट प्लांट एक्सक्यूज मी सर, सर यहाँ एक क्वेश्चन था मेरा. अगला नया टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं सर. माइक्रो न्यूट्रिएंट में से ही था जो एगर एंड यूरिया का आपने लिंक बताया था, तो वो काइंडली आप जरा बता देंगे, रिपीट कर देंगे. और निकल आई गेस था, निकल वाले टॉपिक में मैंने ये बताया था कि जो निकल है बेसिकली निकल हमारे पास जो है वो यूरिएज एंजाइम्स के कोफैक्टर के तौर पर इस्तेमाल होता है. Whenever the nickel is present in the medium, ठीक हो गया. हाँ, whenever the nickel is present in the medium, it will activate the urease enzyme. और urease enzyme जो है वो यूरिया को कन्वर्ट करेगा अमोनिया में, कार्बन डाइऑक्साइड में. एक बात हुई थी उसमें ये है कि as a result of metabolism, if the plant is producing urea and urea is penetrating into the medium, और मीडियम हमने मीडियम के सॉलिडिफिकेशन के लिए मीडियम के सॉलिडिफिकेशन के लिए हमने यूज किया एगर कंटेन नॉर्मली एगर कंटेन्स निकल. whenever the nickel will be provided to the urease enzyme, that urease enzyme will be activated. अब चूंकि हमारे पास यूरिया भी बन रहा था as a result of metabolism, urease enzyme is activated that would break down the urea into ammonia and carbon dioxide. So in that sense we are breaking down the urea. ठीक है जी सर, थैंक यू सो मच. So carbon sources. Okay, if you guys have any other question, बात करें फिर हम carbon source पे चलते हैं आगे. अगर किसी और का भी कोई question है तो सर ये आयरन वाले में भी था कि आप स्लाइड्स अगर आप आयरन वाले पे अगर मूव कर देंगे तो लास्ट पॉइंट जो है उससे ज़रा रिपीट कर देंगे. दैट Fe चिलेटिंग एजेंट. हाँ, the addition, हाँ, Fe EDTA
chellate greatly and improve the availability of the element. उसी की हमने explanation यहाँ पे यहाँ chelating आयरन agent की में बात पढ़ी हो रही है। हाँ आयरन की बात हो रही है, यस आयरन की बात हो रही है, उसी की है, लाइक explanation आयरन हमने की यहाँ पे अवेलेबिलिटी पढ़ी है। ज़्यादा हो जाए। यस यस, और अवेलेबिलिटी Okay, कैसे ज़्यादा, और अवेलेबिलिटी कैसे ज़्यादा होगी अगर हम फ्री फॉर्म में आयरन ऐड करेंगे। आयरन इज अ केटायन, ये फ्री फॉर्म में हम ऐड करेंगे तो मीडियम में मौजूद एनायन के साथ बॉन्ड बना के कोई कंपाउंड बना लेगा, ठीक है, कोई सॉल्ट बन सकता है, एनी अदर कंपाउंड, जिसकी फॉर्म में आयरन जो है हमारे पास वो फ्रीली अवेलेबल नहीं रहेगा। तो इससे बचने के लिए ये ज़रूरी है कि आयरन को पहले ही किसी बाउंड फॉर्म में ऐड करें, और वो ऐसी बाउंड फॉर्म हो कि जिसमें रिलेटिवली और ग्रेजुअली आयरन, फ्री आयरन रिलीज होता रहे। तो दिस वुड बी द चिलेटिंग एजेंट, ये हमारे पास पर्पस फुलफिल करेंगे, और उसमें आयरन लिखी है, यही बात लिखी हुई है, द एडिशन ऑफ iron in the form of FeEDTA chillate greatly improve the availability of the element. Got it? yes sir, yes. Good. Thank you. And any other question from anyone? चलें ठीक है जी, उसके बाद हम आगे मूव करने लगे हैं, बट जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके जी, तो इन एलिमेंट्स के साथ साथ जो अगला हम देखने लगे दैट इज द कार्बन सोर्स, और कार्बन सोर्सेज इन मोस्ट प्लांट टिश्यूज, tissue culture, they are not highly autotrophic. So due to the limitation of carbon dioxide, we have to provide the carbon sources along with the other elements, because बहुत सारे in vitro culture जो हैं हमारे पास, they are not the autotrophic or the phototrophic. इसी वजह से मीडियम में शुगर ऐड की जाती है एज एनर्जी सोर्स, एंड शुगर में हमारे पास सुक्रोज इज द मोस्ट कॉमनली यूज शुगर। अगर से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, मैनिटोल, सॉर्बिटोल भी इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन सुक्रोज जो है दैट इज मोस्ट कॉमन इन केस ऑफ द प्लांट टिश्यू कल्चर्स। The concentration of sugars in nutrient media that generally ranges from 20 to 40 gram per liter, ये बहुत ज़्यादा quantity है, 20 to 40 grams per liter जो है। And sugars also contribute to the osmotic potential in the culture. तो हमें अगर हमारे पास कल्चर ऑटोट्रॉफिक हो भी, तो भी हमें शुगर की क्वांटिटी कुछ ना कुछ ऐड करनी पड़ेगी to maintain the osmotic potential and osmotic balances के लिए. The presence of sucrose that specifically inhibits the chlorophyll formation and photosynthesis, making autotrophic growth less visible. तो एक तो वैसे ही नहीं है ऑटोट्रॉफिक ग्रोथ प्रॉपर, ऊपर से हम सुक्रोज ऐड कर देंगे तो जो रही सही ऑटोट्रॉफिक ग्रोथ थी दैट वुड आल्सो बी हॉल्टेड, और जो क्लोरोफिल फॉर्मेशन है वो कंप्रोमाइज होगी, फोटोसिंथेसिस जो है definitely that will be compromised, and autotrophic growth जो है that will be less visible in that case. So sucrose in the culture media that is usually hydrolyzed totally or partially into the component that are monosaccharide glucose and fructose. The sucrose का ये usage है that is like that. The general superiority of sucrose over glucose that may be on account of the more effective translocation of sucrose to apical meristems. ये reason सामने आ गई कि why we need to add the carbon source in the form of sucrose instead of glucose and fructose. And the reason is that sucrose is more easy and more effective. इसकी translation effective है to the apical meristems. By the way, what are the apical meristems? सर ये So these are the stems shoot of के parts plants होते हैं। present on plant tips. Okay, हाँ जी, जो मनोहर टिप्स बता होती हैं, रहा- एक्सट्रीमिटीज होती हैं जो प्लांट की। मनोहर आपने एक काम करना है, अगली दफा तो आपने कुछ भी बताना है तो आपने पहले बताना है, बाद में जो भी कोई बताता है तो आप कहती हैं हाँ जी ये बता रहे थे। अच्छा जी सर। So this was the carbon source, और आगे अगर हम इस पे देखें the organic supplements, yes. सर एक क्वेश्चन सर ये लास्ट स्लाइड में जी ये ले लास्ट सर स्लाइड क्वेश्चन सर ये प्रेजेंट अभी हम लोगों ने पॉइंट डिस्कस किए मुझे इसमें कंफ्यूजन हो रही है अभी तक। द प्रेजेंस ऑफ सुक्रोज स्पेसिफिकली इनेबल द क्लोरोफिल फॉर्मेशन एंड फोटोसिंथेसिस लिमिटिंग द ऑटोट्रॉफिक ग्रोथ लेस विजिबल। सर अब जब हम कल्चर कर रहे हैं प्लांट सेल को
या एक्स प्लांट को अपने कल्चर कर लें तो हम उसे ऑब्वियसली लाइट कंडीशंस देते हैं अपने इनिशियल कल्चर्स को भी। सर उसमें तो उसमें फोटोसिंथेसिस होनी चाहिए, ऑटोट्रॉफिक मैकेनिज्म होने चाहिए, हम इनहिबिट क्यों करवा रहे हैं इसमें? नहीं इनहिबिट हम नहीं करवा रहे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम ये बात बताना चाह रहे हैं कि हम सुक्रोज ऐड करते हैं, सुक्रोज चाहिए भी है, एंड यहाँ पे एक शायद वर्ड मिस हुआ है कि इफ वी ऐड सुक्रोज इन हाई कंसंट्रेशन now that would inhibit the chlorophyll formation. ओके सर। तो अब यानी कि अगर हमें क्लोरोफिल फॉर्मेशन नहीं चाहिए एंड वी वांट टू शिफ्ट टुवर्ड्स द फोटोट्रॉफिक टुवर्ड्स द हेटरोट्रॉफिक मोड, तो फिर हम सुक्रोज की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देंगे, ठीक है? सो द नेक्स्ट, ओके कोको, इज दैट ओके? यस सर। ओके, सो अगला है जो ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स एंड अमंग दिस, जी 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 सर मेरा सवाल ये था कि अभी आपने बात की सुक्रोज को लेकर, हम बेसिकली सुक्रोज तो हमारे पास शुगर कंपोनेंट है, किस तरह जगह क्लोरोफिल को अफेक्ट कर रही है? क्लोरोफिल कोई एंजाइम तो नहीं हमारे पास, कुछ टाइप प्रोटीन है? नहीं, हाँ बाकी प्रोटीन है, लेकिन होता ऐसे है कि नेचुरली इन द प्लांट्स whenever the sucrose and the carbohydrates they are in the higher concentration, the feedback control जो है that would inhibit the autotrophic mechanism. तो अब उस ऑटोट्रॉफिक मैकेनिज्म में हमारे पास अल्टीमेटली जाके जो क्लोरोफिल सिंथेसिस है वो स्टॉप होती है। तो इसमें वही बात को बता रहा हूँ कि whenever we add the higher concentration of sucrose, now that will inhibit the autotrophic mode, because already feedback जाएगा कि भाई हमारे पास we have a lot of sucrose already in the medium, so switch off the autotrophic mode. तो उस केस में हमारे पास mode of action है that would be the improper or impartial synthesis of the chlorophyll in that case. Okay? सर ये अभी कामरान ने बात की थी क्लोरोफिल प्रोटीन। कोकब सिर्फ एक मिनट, कामरान, इज दैट ओके? नहीं सर, ये बात ये कंफ्यूजन हो कि नहीं क्लियर हो रही। मैं बात सुने सर, बहुत से प्लांट ऐसे हैं, क्योंकि प्लांट तो हमारे पास लगाने के फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है? जो हेटेरोट्रॉफ होती है वो तो इनकी एडिशनल नेचर होती है, जैसे पीछे प्लांट हो गया। मेरा सवाल ये था कि जो बेसिकली सुक्रोज है, सुक्रोज की मैं बात कर लूँ ग्लूकोज की, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या प्राइमरी प्रोडक्ट बनना शुरू होते हैं इनके प्लांट के अंदर, सोर्स एरिया के पास, मतलब कि लीव के पास। बाद में खुद ही इसको सुक्रोज में कन्वर्ट करके इसको ट्रांसफर करना शुरू कर देता है रूट के पास, स्टेम के पास। तो मेरा सवाल ये था कि प्लांट के पास तो अबंडेंट अमाउंट पड़ा होता है सुक्रोज, तो अगर ये ऐसे ही कह के क्लोरोफिल को इनहिबिट करना शुरू कर दे, उसकी फंक्शन को या उसकी एक्टिविटी को, तो प्लांट को तो इसको बनाना नहीं चाहिए, उसको डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर देना चाहिए। चले कोको, बाबा अपना सवाल करें जरा। सर गड़बड़ हो गया, मेरा अपना कॉन्सेप्ट बट साहब ने ला दिया। सर मतलब पहली तो बात ये कि बट साहब ने बात की है क्लोरोफिल प्रोटीन है, उस पे मेरा ब्लड प्रेशर जो है ना वो लो हो गया है इस पे। सर दूसरी क्वेश्चन ये है, बट साहब कह रहे हैं कि सुक्रोज की बात उन्होंने की है, सर ये वैसे एक वैलिडिटी है कि उसको उसी वक्त वो एक्सपोर्ट करता है उस एक्सट्रीमिटीज पे, क्योंकि लीव्स में तो इतनी स्पेस नहीं है कि वो उसे स्टोर करेगा, तो वो तो एक्सपोर्ट आउट होगा। तो यही बात मेरे सपोर्ट में जा रही है, जो मैं बात करना चाह रहा हूँ कि नॉर्मली व्हेन द प्लांट्स आर इन द ऑटोट्रॉफिक मोड, प्लांट्स फीडबैक कंट्रोल से बचने के लिए, लीव्स में स्पेस भी कम है, जो सुक्रोज बन रहा है उसको एक्सपोर्ट आउट कर दिया जाता है। ओके, अब चूंकि इस केस में हमारे पास ऑटोट्रॉफिक मोड वैसे ही कम है, चूंकि इन विट्रो हम ग्रो करवा रहे हैं ड्यू टू द लिमिटेड सप्लाई ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा, हमने सुक्रोज एक्सेस क्वांटिटी में प्रोवाइड कर दिया है, तो नाउ दिस एक्सेस सुक्रोज दैट विल जनरेट अ स्वीयर्स फीडबैक मैकेनिज्म, जो कि मैसेज क्रिएट करेगा कि नाउ द सुक्रोज इज प्रेजेंट, और फिर हमारे पास इम्पेयर्ड क्लोरोफिल सिंथेसिस होगी। अब उसमें सुक्रोज का भी रोल है, उसमें लिमिटेड कार्बन डाइऑक्साइड का भी रोल है, और अल्टीमेटली हमारे पास पर्पस क्या है कि हायर कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज दैट विल डिस्करेज द फॉर्मेशन, दैट विल डिस्करेज द ऑटोट्रॉफिक मोड, क्योंकि ऑलरेडी सुक्रोज शदीद किस्म का प्रेजेंट। इन दिस डजंट मैटर कि सुक्रोज प्लांट्स में स्टोर्ड है या वो किसी और पार्ट में स्टोर्ड है। गॉट इट? जी सर, ठीक है। ओ कमरान, आई मिस दैट, इस तरह वाला। ओके, सो ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स में हमारे पास विटामिन्स आते हैं, और विटामिन्स में हमारे पास जनाब most important thiamine, the vitamin B1, that is essential for most plant cultures, and it is required for carbohydrate metabolism as well as for the biosynthesis of some amino acids. और thiamine vitamin B1 है, इसके अलावा निकोटिनिक एसिड जिसको नियासिन कह सकते हैं, और
pyridoxine B6 है, और विटामिन B1 जो है दैट इज एसेंशियल एज अ कोएंजाइम इन द सिट्रिक एसिड साइकिल, और इस वजह से हमारे पास जनाब इन दो एंजाइम्स का एज एन ऑर्गेनिक सप्लीमेंट। इसके अलावा माइनोसिटोल है, और माइनोसिटोल ऑल्दो इट इज नॉट एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट स्पीशीज बट इट्स इफेक्ट ऑन ग्रोथ इज सिग्निफिकेंट। somehow ये sentence इस तरह तब यूज करते हैं when we are unaware of the function of the minoxidil. So part of the B complex in the phosphate form, that is a part of cell membrane organelles, and is not essential to growth but that is beneficial. Minoxidil की अगर हम बात करें तो vitamin B complex का ये part हुआ करता है। इसके अलावा other complex organics जैसे कि coconut milk है, coconut water है, yeast extract है, fruit juices and fruit pulps and they may be added with condition to condition, जैसा कि हमने कभी किसी ज़माने में इसी कोर्स में पढ़ा था, बनाना एक्सट्रैक्ट हम ऐड करते हैं to enhance the potassium availability, ठीक है। इसके अलावा along with all of these macro and micro elements, carbon sources and organic supplements, the thing that we need other support, this is the physical support, and you know that plants they has to be that they has to grow properly and they has to ये B complex क्या चीज़ है? B complex vitamin B complex, vitamin B complex and B1 2 3 4 5 6 up to B12। अच्छा, plants हैं they need a physical support to anchorage, for anchorage, और इस anchorage के लिए definitely plants हैं if we want to initiate the root and shoots, और plant को encourage के लिए support चाहिए। ये हमने इससे पिछले जो हमारे पास टॉपिक था उसमें देखा था कि हम support के लिए या तो filter papers यूज करते थे, वो हमने एक बनाया था bridge, और दूसरा बात मैंने की थी कि फिजिकल सपोर्ट के लिए हम सेमी सॉलिड मीडिया यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये भी वापस बताया था कि सॉलिड मीडिया का इस्तेमाल जो है ये समहाउ डिस्करेज्ड है। इसमें सेमी सॉलिड मीडिया हम यूज करते हैं जिसमें एगर की क्वांटिटी थोड़ी सी कम हुआ करती है। व्हेन सेमी सॉलिड और सॉलिड कल्चर मीडिया रिक्वायर्ड जेलिंग एजेंट्स आर यूज, जैसे कि एगर है, एग्रोज है, जेलराइट है या फाइटा जेल है, इनका इस्तेमाल किया जाता है जो कि हमारे पास सपोर्ट देते हैं, फिजिकल सपोर्ट। इसके अलावा जेलिंग एजेंट्स के साथ साथ स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि फिल्टर पेपर ब्रिजेस, लिक्विड परमिएबल मेम्ब्रेन सपोर्ट सिस्टम्स। ये सपोर्ट सिस्टम्स हमारे पास होंगे, मुझे याद पड़ता है शायद वो जो लिक्विड ब्रिजेस सॉरी फिल्टर पेपर ब्रिजेस सिस्टम, उसकी हमारे पास एक इमेज भी थी जिस पे हमने थोड़ी सी डिस्कशन की थी। सो एगर दैट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड जेलिंग एजेंट। अब बात करने लगे जेलिंग एजेंट्स की, जिसमें एगर, एग्रोज, जेलराइट एंड फाइटा जेल है। Agar is most commonly used and it is a natural product extracted from species of the red algae, खास तौर पे Gelidium amense, that is a species of the algae, red algae जो कि हमारे पास agar produce करती है। और agar is a synthetic polysaccharide, और agar may be consist of the two components, one is the agarose and number two is the agropectin। और agarose is actually that is the alternating to the D-galactose and 3,6-N-hydro-L-galactose with side chains of 6-methyl D-galactose residue। 50 to 90% इसके अंदर galactose residues जो है agarose portion में exist करते हैं। Agropectin जो है that is like agarose but additionally contains sulfate, ester side chain and D-glucuronic acid इसमें हुआ करता है। तो agar के दो पार्ट। अब इसमें से जो agarose है ये हम यूज करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में agarose जेल फॉर्मेशन के लिए। So agar tertiary structure is double helix and central cavity of which can accommodate water molecule। तो ये हमारे पास डबल हेलिक्स फॉर्म में बनाता है। डबल हेलिक्स में जो सेंट्रल कैविटी है, डबल हेलिक्स को कुछ इस तरह से हम करें लाइक दिस, तो एक यहाँ पे सेंट्रल कैविटी होगी, दिस वन सेंट्रल कैविटी जो है दैट वुड अकोमोडेट द वाटर मॉलिक्यूल्स हियर। एडवांटेजेस सर वो पिछली स्लाइड के ऊपर आपने पहले कहा है कि नेचुरल प्रोडक्ट है और एक्सट्रैक्ट करते हैं एल्गी से, उसके बाद फिर सिंथेटिक पॉलीसैकेराइड है, मतलब ये क्या तो कॉन्ट्रडिक्ट है? in this yes you are right, but in this we can say that agar जो है itself तो polysaccharide नहीं है, you can say that ये अगर agarose और agropectin की फॉर्म में है तो हम इसको as a polysaccharide इसकी कंजम्पशन नहीं कर पाएंगे। But when
हम इस सिंथेटिक इस नेचुरली अकरिंग कंपाउंड को हम सेपरेट करते हैं। सेपरेट कैसे कर रहे हैं? हम इसको एग्रोज और एग्रोपेक्टिन में, और साथ ही हम इससे ग्लैक्टोज ले रहे हैं। तो नाउ दिस वुड बी कंसीडर्ड एज द सिंथेटिक वन। ओके ओके सर। अच्छा, बिकॉज़ वी आर मॉडिफाइंग इट ना। Okay, the advantages of agar. Agar is an inert component and form a gel in water that melt at 100 degrees centigrade and solidify near 45 degrees centigrade. Or concentration that commonly used in plant culture media that range between 0.5% to 1%. अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब एगर बनाते हैं, जो न्यूट्रिएंट एगर जब हम बनाते हैं, तो तब एगर की क्वांटिटी कितनी ऐड करते हैं? किसी को याद है? 1.5%। 0.4% 40 नहीं 1.5 होती है अगर। फिर सोच लें 1.5 ग्राम होती है 100 ml के लिए। सर वही ना 1.5% है। हाँ, तो इसमें चूंकि हमें सेमी सॉलिड बनाना है प्लांट टिश्यू कल्चर का मीडिया, so इस केस में we need to add agar in a less quantity, that would be 0.5 to 1%। ठीक है। If necessary, agar can be washed to remove inhibitory organic and inorganic impurities। agar को wash out किया जा सकता है अगर हमें impurities। agarose जो है that is the refined form। अच्छा, so gels they are not they're not digested by plant enzymes। so normally ये जो gels बनाते हैं इसका agar जो हमारे पास एक jelly form है वो media बनाता है, ये plant enzymes को easily digest नहीं कर सकते। so agar does not strongly react with the media constituent। और फायदा ये है कि media के अंदर जितने भी constituents हैं, macro elements हैं, micro हैं, agar उनके साथ react नहीं कर पाएगा। और ये जरूरी था, क्योंकि अगर agar उसके साथ react कर जाता तो फिर तो हमारे पास एक नई मुसीबत खड़ी हो जाती है कि हमारा जो solidifying agent है वही reaction के रिजल्ट में कुछ undesired products बना रहा है। Disadvantages क्या है कि agar does not gel well under acidic condition, and if we have to provide the low pH for the plant tissue culture medium, तो उस केस में हमारे पास जो agar है that may be discouraged, क्योंकि ये low pH पे काम नहीं कर सकता। ठीक है, not before 4.5 pH। so next इसमें हमारे पास अगर move करें, the inclusion of activated charcoal in media may also inhibit the gelling of agar। somehow when plants are producing some coloring compounds into the media, तो हमें activated charcoal add करना पड़ता है to remove out the color of the media। तो उस केस में जो activated charcoal है ये gelling agar के तौर पे काम करता है, that may inhibit the growth of that activated charcoal may inhibit the gelling of the agar, और agar को properly solidify या gelling उसकी नहीं होने देगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ agarose, और agarose जो है ये अभी हम पीछे पढ़ के हटे हैं, it is extracted from the agar leaving behind agropectin and its sulfate groups। तो प्योर चीज जो हमारे पास बनेगी वो बनेगी agarose है। अच्छा, it is used when the impurities of agar are a major disadvantages। जब हमारे पास agar में मौजूद agropectin नहीं required तो फिर हम agarose यूज करते हैं। बिल्कुल, जब हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जेल बनाते हैं agarose जेल, तो उसमें हमें agropectin और बाकी अदर सल्फर कंपाउंड और कलर नहीं चाहिए होता, तो उसमें हम agarose का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हमारे पास आती है gelrite। gelrite consists of a polysaccharide that is produced by a bacterium Pseudomonas alaudia, or it gives clear solidified medium that leads to detection of contamination at very early stage। तो जो gelrite अगर हमने solidifying agent के तौर पे ऐड की हुई है, तो मीडिया का कलर बहुत साफ शफाफ क्रिस्टल कलर, और जैसे ही कंटामिनेशन आएगी कलर चेंज होगा, हम अर्ली स्टेजेस पे पकड़ सकते हैं। लेकिन अगर ऐड किया हुआ, तो यू नो दैट बाय द एडिशन ऑफ agar the media would turn into the brownish color। तो जहाँ पे अब हमारे पास कंटामिनेशन आ भी जाएगी तो we would not be able to detect the contamination at early stages। So gelrite that would require more stirring than the agar। gelrite ऐड करके हमें ज़्यादा स्टिरिंग करनी है ताकि प्रॉपर gelling बन सके। So concentration of divalent cations such as calcium and magnesium must be within the range of 4 to 8 millimolar per liter, or the medium will not solidify। तो ये बड़ी important बात है कि if we are using the gelrite as a solidifying agent, so we need to add and we need to keep the calcium and magnesium at
4 to 8 मिलीमोलर पर लीटर। अगर हम कोई ऐसा प्लांट टिश्यू कल्चर मीडिया बना रहे हैं जिसमें हमारे पास कैल्शियम और मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो उस केस में फिर जेल राइट जो है दैट इज नॉट बी फिजिबल टू यूज। अगला आता है फाइटा जेल। इट इज एन एगर सब्स्टिट्यूट that produced from a bacterial substance composed of glucuronic acid and ramenose and glucose. ये 3 components इसमें हुआ करते हैं normally. It produces a clear, colorless, high-strength gel which adds in detection of microbial contamination. और same gel right वाला हमारे पास इसका advantage है. It is used at a concentration of 1.5 to 2.5 gram per liters. ये बहुत कम quantity में चाहिए है. दूसरा हमें चाहिए था एगर चाहिए था 1.5 ग्राम फॉर 100 ml और ये हमें 1.5 ग्राम चाहिए पर लीटर। ओके, इट शुड बी प्रिपेयर्ड विद रैपिड स्टिरिंग टू प्रिवेंट क्लम्पिंग। तो रैपिड स्टिरिंग ताकि फौरी तौर पे जहाँ पे ऐड करें वहीं क्लम्पिंग ना हो जाए, ताकि प्रॉपर जेलिंग हो, इस हाई स्टिरिंग होना चाहिए। सो कमर्शियल मीडिया फॉर्मुलेशन जो मार्केट में मिलती हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट मोरेशिच एंड स्कूप, एमएस मीडिया इसको हम कहते हैं, लेंसमेयर एंड स्कूप, एलएस मीडिया, वाइट मीडियम एंड गैम्बर्ग मीडियम, उसके बाद शाइनिंग एंड हाइब्रिडेंट मीडियम और नेस्ट एंड नेस्ट मीडियम, एनएन मीडियम में इसको कहते हैं, लॉयड एंड मैकॉन वुडी प्लांट मीडियम एंड नुटसन मीडियम। ये मीडियम है, योर सिलेक्शन इट डिपेंड्स अपॉन योर रिक्वायरमेंट। और एमएस मीडिया कॉमनली इस्तेमाल होता है, सबसे ज़्यादा यही इस्तेमाल हो रहा है हमारे यहाँ। इसके अलावा ओके जी, यहाँ तक कोई मसला मसाइल, कोई बात समझ में ना आई हुई हो या कुछ ज़्यादा समझ में आ गया हो तो आप मुझे बता सकते हैं। यस कॉकर, समझ में आ रही है बातें? यस सर। सर मैंने ना फॉर एग्जांपल एक कल्चर लगाना है प्लांट का, तो अब इतने सारे मीडिया हैं, मैं कैसे चूज करूंगी अपना मीडिया? मैं मतलब इतने सारे हैं तो इसमें क्या ऐसी क्वालिटीज हैं जो कि मैं प्रेफर करूंगी? मीडिया फॉर्मुलेशंस हैं मानूर, इनकी हमारे पास पूरी डिटेल होती है कि इस मीडिया के अंदर हमारे पास कितने परसेंट हमारे पास कैल्शियम, यानी कितने परसेंट माइक्रो एलिमेंट्स हैं, कितने परसेंट माइक्रो लेवल में कितने मिलीमोलर क्वांटिटी है। तो हम इस वजह से उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। जैसा कि मिसाल के तौर पे अगर आप कोई ऐसा कल्चर लगाना चाहते हैं जिसमें आप शूट इनिशिएशन की तरफ जा रही हैं, आप रूट इनिशिएशन को डिस्करेज कर रहे हैं, उस केस में यू हैव टू प्रोवाइड सम डिफरेंट माइक्रो एलिमेंट्स, और उसमें फिर हमें ये जो इस मीडिया की पूरी फॉर्मुलेशन आपके पास अवेलेबल है, तो आप उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल उसी तरह से जितना भी हमने पढ़ के आए हैं कि सिलेक्शन ऑफ सॉलिडिफाइंग एजेंट जो है वो भी मीडिया कंपोजिशन की बेस पे सिलेक्ट होगा। If you want to use the gel right and your media is containing 4 मिलीमोलर पर लीटर से ज़्यादा है उसके अंदर कैल्शियम, तो फिर आपके लिए ये डिस्करेज होगा। तो मीडिया, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मीडिया फॉर्मुलेशन है दैट विल बी अवेलेबल ऑन द bottles and पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मौजूद होगी। You would select depending upon your requirement. Okay. Okay. I'm unable to hear you. सर आ रही है आवाज? मुझे आवाज आ रही है आपको? आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ भाई। ओके सर, थैंक यू। Mahmood Khan, are you okay with my answer? Yes sir. Yes sir. अच्छा जी, इसके अलावा कोई मसला? सर मेरा एक क्वेश्चन है। करें। सर जो हमने अभी मीडिया पढ़े हैं ये स्पेसिफिकली प्लांट्स के लिए हैं कि हम कोई भी माइक्रोब या एनिमल सेल को भी ग्रो कर सकते हैं इन पे? नहीं बेटा, ये जो हमने मीडिया के नाम पढ़े थे ये प्लांट टिश्यू मीडिया, प्लांट टिश्यू कल्चर मीडिया सारे, हम इन पे डेफिनेटली देखें ये इतने लिस्ट है कि उस पे बैक्टीरियल ग्रोथ तो आ जाएगी, वही ना हमने पढ़ा था कि कंटामिनेशन आ रही है, लेकिन ये मीडिया स्पेसिफिकली दे डिजाइन फॉर द प्लांट टिश्यू कल्चर, उसी की बात करेंगे हम। ओके सर। Yes, Cocker. Yes, sir. Nothing to ask.
नो सर, सर आज काम ठंडा है। चले आगे बढ़ते हैं हार्मोन्स का। हमारे पास कितना टाइम है अभी? Okay, we have approximately we have 20 minutes and ठीक है, हम हार्मोन्स पढ़ सकेंगे आज इजीली पढ़ सकेंगे। सर 20 मिनट है जी, मुझे समझ नहीं आया, आपने कुछ कहा है? सर वो ये कहना चाह रही है कि एक दिन मंडे को एक क्विज हो जाए और थर्सडे को एक क्विज हो जाए। तो उन्हें ये बता दीजिएगा कि दोनों क्विज मंडे को हों। सर ये जैन कहना चाह रहा था। अच्छा, चले आप जैन को बता दीजिएगा। जैन और तो कोई कुछ नहीं कहना चाह रहा? जैन नहीं सर, सब समझ आ गई है। Oh, that's great and I'm proud of you कि तुम इतना ज़्यादा समझदार होते जा रहे हो। अच्छा, so next one that we are going to start, that is the hormones. Yes, Samaya Sajjad. Samaya, basically the quiz were on this day today, लेकिन वो आगे हुए हैं, so I have to take the quizzes. Thursday को हम 2 और लेंगे, फूड का भी और सेल कल्चर का भी। ओके, अब तैयारी कर लीजिएगा। अब चलते हैं जी आगे। Hormones from the Greek word hormone, that meaning to excite, and small organic molecule that elicit a physiological response at a very low concentration, that would be termed as a hormone. और इसके अलावा जो हमारे पास मज़ीद अगर हम देखें तो हमारे पास क्या हो सकता है हार्मोन। This is a chemical signal that coordinate with different parts of the organism. You are very familiar with it कि हार्मोन्स क्या होते हैं, internal and external signals हो सकते हैं that may regulate the growth. They are mediated at least in part by growth regulating substances or hormones, etc. So plant hormones की हम बात करें, that they are natural substances which will be used by plant and acts to control plant activities. Chemical messengers हैं that may influence many patterns of plant development. या हम इनको कह सकते हैं they are naturally or synthetically occurring compounds that affect plant growth and development. So plant hormones को हम थोड़ा सा explain करेंगे। Plant hormones differ from animal hormones in that difference दोनों hormones का जो है। No evidence that the fundamental action of plant and animal hormones are the same. बिल्कुल कोई evidence नहीं। Unlike animal hormones, plant hormones are not made in tissues specialized for hormone production. For example, in case of the animal, sex hormones are produced in the gonads, and human growth hormones जो pituitary gland होती है। Plants का ऐसा हमारे पास कोई specific organs नहीं होता जिसके अंदर hormone production होती है। Unlike animal hormones, plant hormones do not have definite target areas. जैसे कि auxin can stimulate the adventitious roots development in a cut shoot or in any shoot elongation or at the apical dominance or differentiation of vascular tissue. So you know that animal hormones, you know, they affect on a specific area. बिल्कुल वही example जो पिछले point में पढ़ी है, the sex hormones इनका target areas हैं। इसके अलावा जो हमारे पास इसके contradictory जो हमारे पास plant hormones हैं, they do not have definite target areas. They can if अगर auxins हैं रूट सिमुलेट करवानी है तो जहाँ पे शूट कट हुई है वहाँ भी करवा सकते हैं, एडवेंटिशियस रूट जहाँ पे शूट एलोंगेशन की जरूरत है वो भी करवा सकते हैं, एपिकल डोमिनेंस में सो दैट्स व्हाई देयर आर नो स्पेसिफिक एरियाज। आगे हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात अगर करें तो प्लांट हार्मोन्स दे आर सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स, शो स्पेसिफिक एक्टिविटी एट वेरी लो कंसंट्रेशन, display multiple functions in plants, play a role in regulating physiological phenomena in vivo and are those dependent measurement phenomena play करते हैं। They may interact either synergistically or antagonistically to produce particular effect. दो different hormones
सिनर्जिस्टिक इफेक्ट भी दे सकती हैं और एंटागोनिस्टिक इफेक्ट भी दे सकती हैं, ठीक है। एंड सिंथेटिक प्लांट हार्मोन्स की अगर बात करें तो ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के तौर पे काम करती हैं, और इसमें हमारे पास 3 कैटेगरीज हो सकती हैं। ऐसे ग्रोथ ऐसे सिंथेटिक हार्मोन्स ग्रोथ इनहिबिटिंग केमिकल्स हो सकते हैं, ग्रोथ प्रमोटिंग केमिकल्स हो सकते हैं, या स्पेसिफिकली रूट प्रमोटिंग केमिकल्स हो सकते हैं। ये सिंथेटिक के अगर 3 कैटेगरीज में डिवाइड करें तो classification of plant growth regulators PGRs, और इसमें हमारे पास आता है ऑक्सिन्स, साइटोकाइनेंस, जिबरेलिन्स, एब्सिसिक एसिड, थाइलीन एंड अदर कैटेगरी। अदर कैटेगरी में हमारे पास आता है जैस्मोनेट्स, सैलिसिलिक एसिड एंड ब्रेसिनोस्टेरॉइड्स, ठीक है। these are the classifications. and plant hormones chemical messengers के तौर पे जो काम करती हैं ऑक्सिन्स हैं, साइटोकाइनेंस हैं, जिबरेलिन्स हैं और थाइलीन हैं, ठीक है। अब आते हैं साइटोकाइनेंस पे थोड़ा सा। साइटोकाइनेंस दे आर एक्चुअली डाइक्लोरोफेनॉक्सीएसिटिक एसिड 2,4-D, और इसमें हमारे पास इसके साथ साथ हमारे पास ट्रिप्टोफैन एंड इंडोल एसिटिक एसिड ऑक्सीजन के, अगर हम इसको कैटेगराइज कर सकें। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं प्लीज इसको इस पॉइंट से मत पढ़िएगा कि हमें याद करने पड़ेंगे, तो ये हम बायोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे, हम सिर्फ प्लांट टिश्यू कल्चर पढ़ रहे हैं। ये देखना है कि ऑक्सीजन का रोल क्या है। ऑक्सीजन एंड द टिप ऑफ सीडलिंग, और अगर हम सीडलिंग की टिप जो है उसको एगर मीडियम के ऊपर बिल्कुल इस तरह यहाँ पे अगर आप देख सकें दिस वन, उसका टिप को हमने सीडलिंग के ऊपर पुट किया, और उसके बाद एगर जो था वो डिफ्यूज कर गया उसके अंदर, सॉरी ऑक्सीजन डिफ्यूज कर गया एगर के अंदर। हमने एगर का ब्लॉक लिया और उसको ये जो कट टिप थी उसके ऊपर रखा, एंड नाउ ऑक्सीजन जो है दैट वुड पेनिट्रेट कट टिप। तो ये ऑक्सीजन के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि ऑक्सीजन किस तरह से अपना फंक्शन प्ले कर सकता है। asymmetrical placement of a cut tip on coleoptiles resulted in the bending of coleoptile away from the side onto which the tip was placed. तो ऑक्सीजन जो है ये टिप बेंडिंग में अपना रोल जो है इस केस में अगर देखें आउटकम पेनिट्रेटिव एंड इट बेंडेड द टिप। तो आपने शायद कभी एफएससी में या बॉटनी का अगर कोर्स पढ़ा होगा तो इसमें ऑक्सीजन का रोल पढ़ा होगा कि ऑक्सीजन इज इन्वॉल्व इन द शूट जनरेशन, एंड वो जो हमारे पास बेंडिंग हुआ करती है उसमें ऑक्सीजन का रोल है। तो दिस इज लाइक द एग्जांपल, and this response that connect in the phototropism, exactly in the phototropism के अंदर भी फोटो सोर्स की तरफ जो है हमारे पास शूट बेंड होती है, ऑक्सीजन इज रिस्पांसिबल फॉर दैट। और थोड़ा सा लाउड बोल लें। फ्रिट्ज ने 1926 में, इज दैट ओके नाउ? फिर वो आप एकदम आहिस्ता हो जाते हैं तो फिर आवाज नहीं आती। हाँ, एक्चुअली मैं पिछले 2 घंटे से खड़ा होकर पढ़ा रहा था, आई एम टायर्ड नाउ, तो आप अपने कंप्यूटर का वॉल्यूम थोड़ा तेज करें। ओके, फ्रिट्ज वेंट ने 1926 में डिटरमाइन किया कि जो ऑक्सीजन है दैट में एनहांस द सेल एलिमिनेशन, ठीक है। तो ऑक्सीजन के रोल्स की बात कर रहे हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन दैट इज एब्सोल्युटली, लास्ट डायग्राम एक बार रिपीट कर दें, लास्ट डायग्राम एक बार रिपीट कर दें, आपकी आवाज काफी कम हो गई थी। अच्छा, इसमें कुछ नहीं है कमरान, सिर्फ हम ये फिनोमेना देख रहे हैं कि फोटोट्रॉपिज्म में हम देख रहे हैं किस तरह से जो शूट बेंडिंग होती है उसमें, तो उसमें ऑक्सीजन अपना रोल प्ले करता है, कैसे करता है। तो हमने किया ऐसे कि चूंकि ऑक्सीजन जो है वो सीडलिंग के ऊपर यानी कैपिटल मेरिस्टेम पे प्रोड्यूस हो रहा होता है, तो हमने उसको कट किया, कट करने के बाद एगर के ऊपर रखा। अब जो ऑक्सीजन था वो एगर के अंदर पेनिट्रेट कर गया, हमने एगर का ब्लॉक लिया और जो टिप कट हुई थी उसके एक कोने में रख दिया, जैसे कि इस कोने। तो यहाँ पे अब एगर के अंदर एगर में से ऑक्सीजन जो है वो पेनिट्रेट किया है टिप के अंदर यहाँ पे, तो एगर एक साइड, ऑक्सीजन एक साइड में पेनिट्रेट किया है, तो जो टिप थी वो इधर बेंड कर दी, लाइक दिस बेंड कर दी। यहाँ पे सिर्फ यही है कि रिस्पांस दैट इज द रिस्पांस व्हिच इज मिमिक्ड द रिस्पांस सीन इन द फोटोट्रॉपिज्म। तो सिर्फ ऑक्सीजन का रिस्पांस देखने की कोशिश कर रहे हैं। ओके सर। और ऑक्सीजन में एब्सोल्युटली एसेंशियल है न्यू म्यूटेंट्स नॉन एंड वन कंपाउंड जो है इंडोल 3 एसिटिक एसिड ऑक्सीजन कंपाउंड है। मेनी सिंथेटिक एनालॉग्स आर देयर, नाफ्थोल एसिटिक एसिड, IVA, 2,4-D, 2,4,5-T, पिक्लोरान, they are cheaper and they are more stable। ये सिंथेटिक एनालॉग्स हैं, ये इस्तेमाल किए जा सकते हैं।
Generally, growth stimulatory है auxin. It promotes rooting, stimulate the cell elongation, and increase the rate of transcription in the plants, and mediate the response of bending in response to gravity or the light. So auxin is responsible for the bending. वो हमने देख लिया पिछले diagram में. So produced in meristums, especially shoot meristem, and transported through the plant in special self-muscular bundles. ठीक है? तो ऑक्सिन्स के बारे में हमने डिस्कशन किया. उसके बाद अगला आता है साइटोकाइनेंस. और साइटोकाइनेंस में हमारे पास जनाब दिस there are some structures which zeatin के adenine के you do not need to memorize all of these structures. Benzylaminofurin है इसमें साइटोकाइनेंस में. और डिस्कवरी ऑफ साइटोकाइनेंस कैसे हुई? We actually are not very much interested in the discovery, but still for your information, 1913 it was reported an unknown compound that stimulated cellular division, and that was the cytokinin. And उसके बाद 1940 Johannes and Overbeek noted that plant embryo they grew faster when they were supplied with coconut milk, or which is richer in the nucleic acids. यहाँ पे बात हुई. उसके बाद 1950 में Fox, Cook and Carlo Miller they studying the influence of auxin and growth. और फिर इसके अलावा के DNA के साथ how it promoted the DNA replication, etc. Actually, we are not very much interested in the discovery of the cytokinin with respect to our point. ठीक है जी. Cytokinins they move non-polarly in the xylem, phloem and parenchyma cells. और cytokinins they are found in angiosperms, gymnosperms, mosses and ferns. और angiosperm में cytokinins they produce होते हैं in the roots, seeds में होते हैं, fruits में होते हैं और young leaves में produce होते हैं. ठीक है. तो cytokinins का function और role जो है हमारे पास absolutely essential. No mutants are known for this. Okay. Natural compounds जो है इसमें है zeatin and 2 isopentyl adenine. Synthetic analogs हैं ये benzyl adenine और kyanine और cytokinin. It stimulates the cell division with auxin. तो यहाँ पे ये बात याद रखिएगा कि in the cell division, auxin and cytokinin they will synergistically play their role. Promotes the formation of adventitious shoots. It will stimulate the cell division. It will stimulate the dark germination. Dark germination. ये photo period के साथ जो बात मेरा ख्याल है कि photo period की बात हमने की थी इस क्लास में शायद. इसके अलावा cytokinins are involved in the leaf expansion and produce in the root meristem and transported throughout the plant as the zeatin riboside in the phloem. ठीक है. तो cytokinins के रोल हैं हमारे लिए थोड़े से. Auxin and cytokinin ratio important है. और if we provide the intermediate ratio, then callus will form in this case. Sorry, ये कुछ ज़्यादा ही I don't know, like anyway, if you provide a low auxin to cytokinin ratio, shoot formation induced होगी, and if you provide a high auxin to cytokinin ratio, तो हमारे पास root formation that would initiate. That will be initiated. ठीक है जी. So I think we should stop here, and if you guys have any questions, you can ask any questions. सर क्विज का सिलेबस क्या होगा? जितना आज तक पढ़ा है पहले क्विज से लेके यानी पहले क्विज जहाँ तक हो गया था ना उसके बाद से. अच्छा यार तुम सिलेबस की टेंशन क्यों लेते हो? आई नो तुम तो इल्म हासिल करने के लिए पढ़ते हो. क्विज अच्छा हो बुरा हो तुम्हारा इससे कोई कंसर्न ही नहीं होता. बिल्कुल सर. आप थैंक यू सर. This is your quiz LMS पे हो गया जी. Okay जी. Abdul Rafi, Tenants, Adin Khan. Yes sir. Janab Mr. Afaq Ahmed. Afaq, are you there? Not.
अलीना बतूल, अमतुर रहमान तूबा, ओके, अक्सा अजीज कुरैशी, Sir, present. अक्सा अजीज कुरैशी, Present, sir, present. अरीज मतीन, Present. आयशा लोधी, Present, sir. आयशा जमान, Present, sir. दुल्हन ईशा आरिफ, ईशा फातिमा has raised her hand, फैसल बशीर, Present, sir. हाफिजा मारिया, Yes, sir. हसन रजा, Yes, sir. अवैतब सलीम, Yes, sir. गुड, जवेरिया इफ्तिखार, Present, sir. ओके, जवेरिया अरशद, Present, sir. Present. हाँ ओके, जवेरिया अरशद, Yes, sir. ओके, एंड मिस खदीजतुल कुबरा, लाइबा ताहिर, Khadija is not here. Okay, and Mahnoor Suhail. Present, sir. Okay, and Maruf Khalid. She's not here. Mariam. Yes, sir. Muhammad Asad Riyaz. Present, sir. Muhammad Bilal. Yes, sir. Kamran Bhatt sahab. Yes, sir. Jan Muhammad Naeem sahab. Naman Aziz. Yes, sir. Imran. प्रेजेंट सर। रेशमा। सर मैं प्रेजेंट हूँ। ये मैं से क्या मुराद है, नाम बताएं अपना। मारूफ मारूफ। अभी टाइम पे अटेंडेंस बोली हो आपने पिछले 1.5 महीने में। एनीवेज रोहा अहमद। नहीं सर, प्रेजेंट सर। जस्ट डिस्कनेक्ट हुआ है। ओके। सजल वकास। प्रेजेंट सर। समिया सज्जाद। समिया इज नॉट हियर। प्रेजेंट। ओके, सौलत नवाज शाह। Present, sir. And Suwera Asghar. Yes, sir. Sarish Saeed. Yes, sir. Shahjar Farooq. Sir. Shehzade Sakhi. जी सर प्रेजेंट। Sidra Noor. प्रेजेंट सर। Simra Arif. प्रेजेंट सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर खदीजा की Yes, लगा sir. दिया। सर मेरे असल में ताबिश डिस्कनेक्ट हो गया present. था। Jiha Uruj. प्रेजेंट सर। Zain Abbas. Zainab Hayat. Yes, sir. प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। एक्सक्यूज मी सर, खदीजा की लगा दें। रिजल्ट लगा दिया बच्चे। ओके सर, थैंक यू। सर दुर्ज में Excuse me, आरिफ sir. आरिफ भी प्रेजेंट है, उसका मैसेज आया है, उसका माइक नहीं ऑन हो रहा। ये कैसे हो सकता है बच्चों, माइक Zainab ना ऑन was हो रहा present, हो? How is sir. that possible? She can even write in आवाज the नहीं chat. आती, She ऑडियो can even write in the chat. Chat में write करते हैं। मैं Sir. उसको कहती हूँ। जी, और तो सुन कौन? नहीं लिया होगा उसने। हाँ जी, कौन बात कर रहा था? सर मैं ताबिश। यस ताबिश। सर स्लाइड्स अपलोड कर दें और Uploaded चैप्टर भी है, इसमें अपलोड नहीं है। मैं uploaded जी ड्राइव पे है। देखा था। हाँ जी ड्राइव कर दी, आप कर दिए मैंने अपलोड। चेक कीजिएगा, अगर ना हो तो फिर बताइएगा, मैंने सुबह की है। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। वीडियोस भी इसकी लेक्चर्स की वीडियोस शाम को कर दूंगा। ओके थैंक यू सर। ओके। सर मुझे आपकी मेल नहीं आती है। आप कौन हैं? मोहम्मद बिलाल। आपको मेरी ईमेल नहीं आती? नहीं सर, मुझे नहीं आती। वैसे मैंने ईमेल्स की नहीं अभी पूरी क्लास को, कोई भी एलएमएस के थ्रू मैं इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो मैं कर दूंगा। ठीक है। ओके सर। ओके, अल्लाह हाफिज़। विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।